بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کم جونگ ان کے چائنا دورے کی تصدیق کر دی گئی۔ نارتھ کے لیڈر نے کہا کوریا کے علاقے کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک بنائیں گے۔ سعودی عرب جنگی جنون ختم کرے، یمن مسئلے کو حل کرنے کے لیے بات چیت کرے۔ یونائیٹڈ نیشنز میں شکایت پر ایرانی سفیر کا جواب۔ محمد بن سلمان نے UN چیف سے ملاقات میں یمن پر بات کی۔ نیو یارک ٹائمز سے کہا ایران کو نیوکلیئر ہتھیار بنانے سے روکا جائے۔ امریکہ نیوکلیئر ڈیل نہ توڑے، 100 سے زیادہ سیکیورٹی ایکسپرٹس نے ٹرمپ کو دیا مشورہ۔ ایران سے جنگ ہوئی تو عراق دور رہے گا، حیدر العبادی نے امریکہ پر بات صاف کر دی۔ دوما کے ملیٹنٹس کا ہتھیار ڈالنے سے انکار، سیرین فوج فیصلہ کن آپریشن کرے گی۔ حماس کے ملین مارچ کو روکنے کے لیے اسرائیل نے جارڈن اور ایجپٹ سے مدد مانگی، مغربی کنارے میں کئی گرفتار۔ ہندوستانی پارٹیاں سوشل میڈیا ڈیٹا استعمال کرتی رہیں، کیمبرج اینالیٹیکا کے سابق ملازم نے اقرار کر لیا۔ اسٹیو اسمتھ اور ڈیوڈ وارنر پر 1 سال کی پابندی لگا دی گئی، IPL سے بھی باہر۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لے چلتے ہیں۔ یونائیٹڈ نیشنز میں ایران کے سفیر نے سعودی عرب کے اس الزام کو رد کر دیا ہے کہ ایران یمن کے الحوثیوں کو میزائل دے رہا ہے۔ انہوں نے سعودی حکومت سے کہا کہ وہ جنگی جنون ختم کرے اور اپنے پڑوسی یمن کے ساتھ بات چیت کرے۔ ایرانی سفیر غلام علی خسرو نے کہا کہ یمن میں 3 سال سے جاری سعودی جنگ کی کوئی جائز حیثیت نہیں ہے اور غریب عرب ملک کے خلاف بمباری سے قتل عام، بھوک، بیماری اور انفراسٹرکچر کی تباہی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔ انہوں نے یونائیٹڈ نیشنز میں سعودی عرب کے سفیر عبداللہ المولمی کی طرف سے سیکیورٹی کونسل کو لکھے گئے ایک خط کا جواب دیتے ہوئے یہ باتیں کہیں۔ سعودی سفیر نے اس خط میں مطالبہ کیا تھا کہ ایران کو الحوثیوں کو بیلسٹک میزائل دینے سے روکا جائے اور اسے جواب دہ بنایا جائے۔ غلام علی خسرو نے کہا کہ سعودی عرب نے پہلی مرتبہ یمن میں اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے ایران کے خلاف اس طرح کا خط لکھا ہے اور دنیا اس حقیقت کو اچھی طرح جانتی ہے۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ سعودیوں نے اپنی ناتجربہ کاری اور اس طرح کی مہم پسندی کے ذریعے یمن کے لاکھوں لوگوں کو ہیضے کی وبا سے دوچار کر دیا ہے اور اپنی بمباری میں بچوں اور سیویلینز کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ سعودی عرب کو یمن کے عوام کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران بنیادی طور پر اس بات میں یقین رکھتا ہے کہ یمن میں جنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بحران کو سیاسی طور پر حل کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران چاہتا ہے کہ سعودی عرب یمن میں امن کے عمل میں شامل ہو جائے اور ایسی کارروائیاں نہ کرے جو یمن میں امن قائم کرنے میں ناکام ہو گئی ہیں بلکہ ان کے نتیجے میں القاعدہ اور ISIS جیسی دہشت گرد تنظیمیں پیدا ہوئی ہیں۔ غلام علی خسرو نے سعودی عرب کو امریکہ کے ہتھیاروں کی سپلائی پر ناراضگی کا اظہار کیا اور مسلم دنیا اور عالمی برادری سے کہا کہ وہ سعودی عرب پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالے کہ وہ یمن میں ہلاکتیں روکے۔ یونائیٹڈ نیشنز کے بچوں سے متعلق ادارے یونیسیف نے کہا کہ بے رحمانہ جنگ کی وجہ سے یمن کا نظام تعلیم ٹھپ ہو گیا اور تباہ ہو گیا۔ یونیسیف نے کہا کہ کم سے کم 5 لاکھ بچے جنگ کی وجہ سے اسکولوں سے نکل گئے ہیں۔ یمن میں یونیسیف کے نمائندے نے کہا کہ تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے یا تعلیم چھوڑنے کی وجہ سے یمن کے بچوں اور ایک نسل کا مستقبل اندھیرے میں چلا گیا ہے۔ یونیسیف نے یمن جنگ کے فریقوں سے کہا کہ وہ جنگ ختم کریں، ٹیچرز کو تنخواہیں دیں، بچوں کی تعلیم کو یقینی بنائیں اور تعلیم کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسہ خرچ کریں۔
सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा है कि इतवार को यमन से अलहूसियों की तरफ से सऊदी अरब पर मिसाइल हमले उनकी बढ़ती हुई कमजोरी का सबूत है और ये उनकी आखिरी कोशिश है। क्राउन प्रिंस ने कहा कि सऊदी अरब सियासी अमल के जरिए जंग को खत्म करना चाहता है और फौजी दबाव के जरिए अलहूसियों में फूट डालने की कोशिश कर रहा है। बिन सलमान ने कहा कि अलहूसी दिन ब दिन सियासी तौर पर अलग थलग पड़ते जा रहे हैं, जिन्होंने 2014 में दारुल हुकूमत सना पर कब्जा कर लिया था। इस मौके पर क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब में की जाने वाली हालिया तब्दीलियों और ईरान और कतर के साथ सऊदी अरब के मसाइल के बारे में भी अपने ख्यालात का इजहार किया। क्राउन प्रिंस ने इल्जाम लगाया कि ईरान न्यूक्लियर हथियार हासिल कर रहा है ताकि वो मिडल ईस्ट में बदअमनी फैला सके। उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि ईरान का टारगेट क्या है, अगर ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार आ गए तो वो मिडल ईस्ट में जो चाहे कर सकेगा। क्राउन प्रिंस ने कहा कि ईरान के न्यूक्लियर बम को बनने का मौका देने का मतलब यह है कि आप एक ऐसी गोली का इंतजार कर रहे हैं जो आपके सर पर लगेगी। न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर्स और रिपोर्टर्स से पहली मर्तबा मुलाकात करते हुए क्राउन प्रिंस ने कहा कि आज से ही हमें ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अमेरिका, सऊदी अरब और इसराइल चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर डील रद्द कर दी जाए या उसे दोबारा लिखा जाए, लेकिन ईरान, रशिया और यूरोपीय मुल्कों ने इस तजवीज़ को नजरअंदाज कर दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील को सुधारने के लिए कुछ महीनों का वक्त दिया है। मोहम्मद बिन सलमान ने मिडल ईस्ट में इंतहा पसंदी को रोकने के लिए सऊदी अरब की कोशिशों का जिक्र किया। उन्होंने अपने इस ख्याल को दोहराया कि इस्लाम को हाईजैक कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इख्वानुल मुस्लिमून जैसी तंजीमों और आईएसआईएस और अल-कायदा जैसे ग्रुपों ने इस्लाम की शक्ल को बिगाड़ दिया है। क्राउन प्रिंस अमेरिका के लंबे दौरे पर हैं, जिसके दौरान उन्होंने सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। वो वाशिंगटन और न्यूयॉर्क जा चुके हैं, अब वो सिलिकॉन वैली और ह्यूस्टन जाने वाले हैं। उनके इस दौरे का मकसद सऊदी अरब और अमेरिका के ताल्लुकात को मजबूत करना है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अपने अमेरिका दौरे में ज्यादातर वक्त ईरान के खिलाफ लॉबिंग में गुजारा और अमेरिका से ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया, लेकिन खबर है कि अमेरिका के कई सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने वहां की हुकूमत को ईरान के ताल्लुक से ऐसी कोई भी कार्रवाई करने के खिलाफ खबरदार किया है। अमेरिकी मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात बताई गई। अमेरिका के 100 से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने, जिनमें 50 रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं और 30 साबिक सफीर हैं, सदर डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि वो ईरान न्यूक्लियर डील को मत तोड़ें। उन्होंने एक बयान जारी किया जिसका उन्वान ये है कि ईरान न्यूक्लियर डील को बरकरार रखो, उसकी 10 अहम वजूहात हैं। इस बयान में ट्रंप से कहा गया कि वो ईरान न्यूक्लियर डील के पाबंद रहें, क्योंकि इससे नॉर्थ कोरिया और ईरान से निमटने में और अमेरिका के एतबार को कायम रखने में मदद मिलेगी और एक आलमी लीडर की हैसियत से अमेरिका के असर को बाकी रखा जा सकेगा। इस बयान में कहा गया कि ईरान न्यूक्लियर डील को तोड़ने से अमेरिका का कोई सिक्योरिटी मकसद पूरा नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान न्यूक्लियर डील में तब्दीलियों या सुधार के लिए 12 मई तक का वक्त दिया है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात की। बताया गया कि इस मौके पर यमन जंग और दूसरे मामलात पर बात हुई। एक ऐसे वक्त जब ईरान और अमेरिका सऊदी इत्तेहाद के दरमियान तनाव बढ़ता जा रहा है, इराक ने इशारा दिया है कि वो जंग की सूरत में इस मामले से दूर रहेगा। इराक ने वार्निंग दी कि वो जहां तक हो सके इस मामले में नहीं पड़ेगा। इराकी वजीर आजम हैदर अल अब्बादी के हवाले से मीडिया की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। हिंदुस्तान ने रियाद और सऊदी अरब के कई दूसरे शहरों पर यमन से मिसाइल हमलों की मजम्मत की है। वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार ने दिल्ली में सऊदी अरब में मिसाइल हमलों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि नई दिल्ली को तनाव में इजाफे पर फिक्र है, जिससे कई बेकसूर जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। हिंदुस्तान ने यह बात दोहराई कि दहशतगर्दी की हर शक्ल से लड़ना जरूरी है। अफगानिस्तान में अमेरिका के नए सफीर जॉन बैस ने कहा कि ईरान तालिबान की मदद कर रहा है ताकि सरहदी इलाकों में इस्तेहकाम मुतासिर किया जा सके। बीबीसी से बातचीत करते हुए अमेरिकी सफीर ने कहा कि ईरान तालिबान को लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा है। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स इस सिलसिले में काफी सरगर्म है। यह जानना बहुत मुश्किल है कि ईरान क्यों अफगानिस्तान में जंग को हवा देने को अपने लिए बेहतर या अपने हक में समझ रहा है। ईरान के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा कि अफगानिस्तान के मसले को हल करने के लिए जंगी कोशिशें नाकाम हो गई हैं और बैरूनी फौजों की वापसी के जरिए मुल्क में अमन बहाल किया जा सकता है। ईरान के नायब वजीर खारजा अब्बास अरक्ची ने उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में एक अफगानिस्तान अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अफगानिस्तान की जंग बैरूनी फौजों की मौजूदगी की वजह से लंबी हो रही है। ताशकंद कॉन्फ्रेंस में एक डिक्लेरेशन मंजूर किया गया जिसमें सियासी हल की जरूरत पर जोर दिया गया।
बात करते हैं सीरिया बहरान की। सीरिया की फौज गौता के बचे कुछ इलाकों को छुड़ाने के लिए एक फैसला कुन ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। गौता के बाज़ इलाकों में मिलिटेंट्स अभी छुपे हुए और हथियार डालने से इनकार कर रहे हैं। हालांकि कई इलाकों पर सरकारी फौज का कब्जा हो गया और कई मिलिटेंट्स बाहर निकलने के लिए रशिया और सीरिया की हुकूमतों से समझौता कर चुके हैं। हुकूमत के ताइदी एक अखबार अल वतन ने कहा कि गौता में तैनात सरकारी सिपाही दोमा में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर जैश उल इस्लाम के मिलिटेंट्स शहर को छोड़ने से इनकार करते हैं और वहां से तखलिया नहीं करते हैं तो ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। सीरिया के अहदेदार ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि दोमा की सूरत हाल बहुत नाजुक है। आने वाले 2 दिन बहुत फैसला कुन हो सकते हैं। अब तक गौता के दूसरे इलाकों से हजारों मिलिटेंट्स और उनके घर वाले इदलीब की तरफ जा चुके हैं, जिनमें एक मिलिटेंट तंजीम फलाकुर रहमान के ज्यादातर मिलिटेंट्स शामिल है। गौता के अरबिन, जुमलका, जोबार, एंतरमा इलाकों के मिलिटेंट्स ने रशिया के साथ समझौता कर लिया है। अमेरिका ने सीरिया के देर अल-ज़ोर में एक बड़ा फौजी अड्डा बनाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रशिया की एक न्यूज एजेंसी ने अपनी एक रिपोर्ट में यह बात कही। इस रिपोर्ट में देर अल-ज़ोर में अमेरिका की ताईद रखने वाली फौज एसडीएफ के एक अहदेदार का हवाला दिया गया। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके इलाके दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। किम जोंग उन के चाइना दौरे की तस्दीक कर दी गई। नॉर्थ के लीडर ने कहा कोरिया के इलाके को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाएंगे। सऊदी अरब जंगी जुनून खत्म करे, यमन मसले को हल करने के लिए बातचीत करे। यूनाइटेड नेशंस में शिकायत पर ईरानी सफीर का जवाब। मोहम्मद बिन सलमान ने यूएन चीफ से मुलाकात में यमन पर बात की। न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोका जाए। अमेरिका न्यूक्लियर डील ना तोड़े, 100 से ज्यादा सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिया मशवरा। ईरान से जंग हुई तो इराक दूर रहेगा, हैदर अल अब्बादी ने अमेरिका पर बात साफ कर दी। दोमा के मिलिटेंट्स का हथियार डालने से इनकार, सीरियन फौज फैसला कुन ऑपरेशन करेगी। हमास के मिलियन मार्च को रोकने के लिए इसराइल ने जॉर्डन और इजिप्ट से मदद मांगी। मगरबी किनारे में कई गिरफ्तार। हिंदुस्तानी पार्टियां सोशल मीडिया डेटा इस्तेमाल करती रहीं, कैम्ब्रिज एनालिटिका के साबिक मुलाजिम ने इकरार कर लिया। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर 1 साल की पाबंदी लगा दी गई, आईपीएल से भी बाहर। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को इजिप्ट के कई वोटर्स ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें वोट देने के लिए पैसा दिया गया और दूसरी सहूलतों की पेशकश की गई ताकि इलेक्शन में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा दिखाया जा सके। इस इलेक्शन में अब्दुल फतेह अल सीसी की कामयाबी यकीनी है, जिनके खिलाफ सिर्फ एक डमी उम्मीदवार मैदान में है। संजीदा उम्मीदवारों को इस इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया और इसके लिए तरह तरह के हरबे इस्तेमाल किए गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीसी चाहते हैं कि इलेक्शन के अमल को साफ सुथरा दिखाया जाए और वो कामयाबी हासिल करें।
मगरबी किनारे में हमास के कई हामियों और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 13 मार्च को गजा में फलस्तीनी अथॉरिटी के वजीर आजम के काफिले पर हमले के बाद पिछले 2 हफ्तों में इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने इल्जाम लगाया कि रामी हमदुल्ला के काफिले पर हमले के लिए हमास जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि इस हमले में रामी हमदुल्ला को कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन हमास ने इस इल्जाम को रद्द कर दिया है और कहा है कि वो इस बात को मालूम करने के लिए तहकीकात कर रही है कि इस धमाके के पीछे किसका हाथ है। इस हमले के बाद हमास की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक ऑपरेशन करते हुए बाज़ लोगों को गिरफ्तार किया। बताया गया कि मगरबी किनारे में कम से कम 55 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान मगरबी किनारे में फलस्तीन कानून साज काउंसिल के रुकन हुसैन क़रीश ने अल जज़ीरा को बताया कि ये गिरफ्तारियां फौरी रुकनी चाहिए और उन्हें दुरुस्त नहीं ठहराया जा सकता। इसराइली मीडिया में कहा गया कि इसराइल की हुकूमत ने 30 मार्च को फलस्तीनियों के मिलियन मार्च को रोकने के लिए अरब मुल्कों के साथ ताउन हासिल किया है। एक इसराइली अखबार में कहा गया कि हुकूमत ने हालिया दिनों में जॉर्डन, इजिप्ट और फलस्तीनी अथॉरिटी से रब्त पैदा किया है। इन मुल्कों और फलस्तीनी अथॉरिटी से कहा गया है कि वो गजा पट्टी में फलस्तीनियों को वापसी मिलियन मार्च से रोकें। 30 मार्च को फलस्तीनी तंजीमों की तरफ से पूरे मुल्क में एहतजाज का ऐलान किया गया, जिसके दौरान 1948 में कब्जा किए गए इलाकों की तरफ मार्च निकाला जाएगा। इसराइल ने फलस्तीनी अथॉरिटी के साथ रब्त पैदा करते हुए कहा कि वो यौम अर्ज या लैंड डे के मौके पर फलस्तीनियों के हक वापसी के लिए होने वाले मुजाहरों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए। इसराइली मीडिया में कहा गया कि आने वाले दिनों में फलस्तीनियों के मुजाहरे तेज हो सकते हैं और तनाव में काफी इजाफा हो सकता है। रशिया ने एक बार फिर यह बात दोहराई है कि वो मगरबी मुल्कों की तरफ से उसके सफारतकारों के खिलाफ कार्रवाई का जवाब देगा, लेकिन उसने कहा कि बातचीत के दरवाजे अब भी खुले हैं। अमेरिका के अलावा 20 से ज्यादा मगरबी मुल्कों ने दर्जनों रशियन सफारतकारों को मुल्क से बाहर निकलने का हुक्म दिया है। 4 मार्च को बरतानिया में एक साबिक रशियन जासूस और उसकी बेटी को जहर देने के मामले पर यह तनाव पैदा हुआ है। इस दौरान रशिया की वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़कारोवा ने कहा कि बरतानिया के ओहदेदार दुनिया की राय पर असर अंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में वज़ीर आज़म थेरेसा मे नाकाम हो जाएंगी। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने वादा किया है कि वो कोरिया के इलाके को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने चाइना के सदर जी जिनपिंग से बीजिंग में मुलाकात करते हुए ये बात कही। चाइना की सरकारी न्यूज एजेंसी ने किम जोंग उन के हवाले से कहा कि अगर साउथ कोरिया और अमेरिका नॉर्थ कोरिया की कोशिशों का अच्छा जवाब देते हैं तो इससे मसले को हल किया जा सकता है। किम जोंग उन ने अपने दादा और वालिद का जिक्र करते हुए कहा कि आंजहानी सदर किम इल सांग और आंजहानी जनरल सेक्रेटरी किम जोंग इल की मर्जी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया के इलाके को न्यूक्लियर हथियार से पाक बनाने का पाबंद है। किम जोंग उन ने बीजिंग का अचानक दौरा किया। यह दौरा एक ऐसे वक्त हुआ है जब कहा जा रहा है कि किम जोंग उन साउथ कोरिया के सदर मून जाए-इन और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से बहुत जल्द मिलने वाले हैं। चाइना और नॉर्थ कोरिया दोनों ने तस्दीक कर दी है कि किम जोंग उन ने बीजिंग का दौरा किया और जी जिनपिंग से मुलाकात की। जी जिनपिंग ने चाइना के ग्रेट हॉल में किम जोंग उन से मुलाकात की। इस मौके पर सदर और उनकी बेगम ने किम जोंग उन और उनकी बेगम के लिए बैंक्वेट का एहतमाम किया। इस मौके पर उन्होंने एक तहजीबी प्रोग्राम भी देखा। ये 2011 में नॉर्थ कोरिया के लीडर बनने के बाद किम जोंग उन का पहला बैरूनी दौरा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह दौरा साउथ कोरिया और अमेरिका के लीडर्स के साथ होने वाली मुलाकातों की तैयारियों का सिलसिला है। व्हाइट हाउस ने कहा कि चाइना की हुकूमत ने उन्हें नॉर्थ कोरिया के लीडर के दौरे के बारे में बता दिया है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान सारा सैंडर्स ने यह बात कही। अब कुछ खबरें इंडिया की। मरकजी हुकूमत ने रामनवमी के मौके पर फिरके वाराना झड़पों और गड़बड़ के वाकयात के सिलसिले में वेस्ट बंगाल की हुकूमत से रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट बाबुल सुप्रियो ने इल्जाम लगाया कि ममता बनर्जी हुकूमत खुशामद की सियासत करते हुए फिरके वाराना हम-आहंगी को तबाह कर रही है। रामनवमी के मौके पर वेस्ट बंगाल के रानीगंज में जुलूस के दौरान 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पें हुई थी, जिनमें एक शख्स हलाक और बाज़ जख्मी हुए थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई पेपर लीक मामले पर नाराजगी का इजहार किया और इस मामले में सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। पता चला कि वज़ीर आज़म ने इस सिलसिले में एचआरडी मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर से बातचीत की। सीबीएसई ने पेपर लीक होने की रिपोर्ट्स के बाद 10वीं जमात के मैथमेटिक्स और 12वीं जमात के इकोनॉमिक्स का पेपर दोबारा रखने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया के डेटा से मुताल्लिक तनाज़े की मरकजी किरदार कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी के एक साबिक मुलाजिम ने कहा है कि हिंदुस्तान की सियासत में हुकूमत के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। गड़बड़ की वजह से कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया गया। इस दौरान आंध्र प्रदेश को खुसूसी दर्जा देने के मुतालबे पर तेलुगु देशम और वाईएसआरसीपी के अरकान ने लोकसभा और राज्यसभा में गड़बड़ की।
क्रिकेट, स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पर 1 साल की पाबंदी लगा दी गई है और उन्हें इस साल के आईपीएल से भी बाहर कर दिया गया है, जबकि कैमरून बेनक्रॉफ्ट को 9 महीनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उन पर 1 साल की पाबंदी लगाई। उन पर साउथ अफ्रीका सीरीज के दौरान बॉल टैंपरिंग में शामिल होने का इल्जाम लगाया था, जिसका उन्होंने इकरार कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद हिंदुस्तानी क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने भी उन पर आईपीएल में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किम जोंग उन के चाइना दौरे की तस्दीक कर दी गई। नॉर्थ के लीडर ने कहा कोरिया के इलाके को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाएंगे। सऊदी अरब जंगी जुनून खत्म करे, यमन मसले को हल करने के लिए बातचीत करे। यूनाइटेड नेशंस में शिकायत पर ईरानी सफीर का जवाब। मोहम्मद बिन सलमान ने यूएन चीफ से मुलाकात में यमन पर बात की। न्यूयॉर्क टाइम्स से कहा ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने से रोका जाए। अमेरिका न्यूक्लियर डील ना तोड़े, 100 से ज्यादा सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने ट्रंप को दिया मशवरा। ईरान से जंग हुई तो इराक दूर रहेगा, हैदर अल अब्बादी ने अमेरिका पर बात साफ कर दी। दोमा के मिलिटेंट्स का हथियार डालने से इनकार, सीरियन फौज फैसला कुन ऑपरेशन करेगी। हमास के मिलियन मार्च को रोकने के लिए इसराइल ने जॉर्डन और इजिप्ट से मदद मांगी। मगरबी किनारे में कई गिरफ्तार। हिंदुस्तानी पार्टियां सोशल मीडिया डेटा इस्तेमाल करती रहीं, कैम्ब्रिज एनालिटिका के साबिक मुलाजिम ने इकरार कर लिया। स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर पर 1 साल की पाबंदी लगा दी गई, आईपीएल से भी बाहर। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।